Whenever you hear about the microbe or microorganism, you may think it is something which harms us, but it's not the complete true. There are microorganisms which are beneficial for us. So, what are these friendly microorganisms? We will discuss about these in this session. So, talking about the friendly microorganism. So friendly microorganisms कहाँ कहाँ यूज होते हैं? In food and beverage industry, in agriculture, in cleaning environment, in making medicines. So first, in food and beverage industry. Lactobacillus is the bacterium that sours milk and is used to prepare curd from milk. आप सबने घर में देखा होगा कि दूध को दही से जब कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन करता है? वो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है. फंजाई लाइक मशरूम आर एडिबल एंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो मशरूम क्या है बच्चे? मशरूम एक फंजाई है, फंगस है. यीस्ट भी क्या है? फंजाई है. Yeast is used in preparing food items like bread and cakes. Yeast is also used in breweries and making alcohol, wines and acetic acid by the process of fermentation. Fermentation क्या होती है बच्चे? Conversion of sugar into the alcohol. Fermentation होती है बच्चे जब भी किसी सेल में respiration होती है under anaerobic conditions, तो वहाँ पे जो भी शुगर्स प्रेजेंट होते हैं वो अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं. इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं. Yeast is grown on a natural sugars present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. Now, uses of microorganism in agriculture. Some bacteria like rhizobium and blue-green algae, example है nostoc, live in the root nodules of plant such as gram, pea, etc. So ये जो plants होते हैं gram, pea, इन plants को हम leguminous plants कहते हैं. Leguminous plants कौन से होते हैं? Leguminous plants वो होते हैं जिनमें beans आती हैं, मटर आते हैं, gram आता है, ठीक है, pea आ जाते हैं. इनकी एक खास बात ये होती है कि इनकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स में चेंज करता है. क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को एज सच नहीं ले सकते, नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं. तो उस नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया. These bacteria absorb the nitrogen from atmosphere and convert it into the nitrates, which serve as the natural fertilizer for plant, hence enhancing soil fertility. तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ पी प्लांट के लिए ही अच्छा नहीं है बल्कि फर्दर सॉइल की एक्टिविटी, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बहुत अच्छा कर देता है. These microbes are commonly called as the biological nitrogen fixers. Now, uses of microorganism in cleaning the environment. So, how they help in cleaning the environment? Listen. The microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into the simple substances. These substances are again used by other plants and animals. देखो, जब भी आप कोई भी चीज को थ्रो कर देते हो, कोई खाने वाले मटेरियल को आप थ्रो कर देते हो, तो आप देखते हो कि धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, डिके हो जाता है उसका. वो या मिट्टी पे आपने, सॉइल पे या कहीं पे भी आपने थ्रो कर दिया, वो कहाँ चली जाती है? थोड़े दिन बाद गायब हो जाती है. कहाँ चली जाती है? एक्चुअली उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसका डिके हो जाता है. किसके द्वारा? बैक्टीरिया के थ्रू. बैक्टीरिया उसका डिके कर देते हैं. Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. The plant waste can be converted into manure by action of microbes. The nutrient released in this process can be used by plants again. जो भी आपका किचन वेस्ट होता है, जब आप उसको मिट्टी में डंप कर देते हो और उसके ऊपर से नीम लीव्स वगैरह डाल देते हैं तो एक कंपोस्ट तैयार होती है. एक्चुअली में ये कंपोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार करते हैं. उनका एक्शन होता है सॉइल के अंदर उन्हीं किचन वेस्ट पे और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं मेन्योर के अंदर. Now, uses of microorganism in making medicines or vaccine.
बच्चे वैक्सीन क्या होती है, ध्यान से सुनना. When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. So, if dead or weakened microbes are introduced in healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. The antibodies remain in body and we are protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works. Diseases like cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. Vaccines are available in nearby hospitals. These days, vaccines are made on large scale from a microorganism to protect human and other animal for several diseases. So अभी आप समझ गए. पहले आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर करता है जब, तो बॉडी उसको नॉन सेल्फ कंसिडर करती है और आपकी जो फाइट करने की कैपेसिटी होती है दैट इज इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज. वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, फॉरेन पार्टिकल से फाइट करती हैं और उनको किल कर देती हैं. सो क्या होता है जब भी लेकिन अगर कोई भी बहुत ज्यादा एक्टिव बैक्टीरिया या एक्टिव वायरस आपके अंदर चला जाता है लिविंग, तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, आपको इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती है. तो उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीन दी जाती है. जैसे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट्स या माउथ पार्ट्स या कुछ पार्ट्स बॉडी में चले जाएं, तो वो डेड है, इन्फेक्शन तो आपको कॉज करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी उनको फौरन मान के उनके प्रति एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी कभी वो लाइव ऑर्गेनिज्म आपके अंदर जाएगा तो आपके पास पहले से ही उसके लिए एंटीबॉडीज होंगी. ठीक है, तो इस तरह से वैक्सीन काम करती है. वैक्सीन में डेड या वीक स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दी जाती है ताकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएं, सो दैट कभी फ्यूचर में आपकी बॉडी में वो वायरस लाइव या वो वायरस या बैक्टीरिया लाइव एंटर कर जाता है तो आपके पास पहले से ही उसकी एंटीबॉडीज होती हैं, सो वो उसको इजीली किल कर देता है. नाउ यूजेस ऑफ बैक्टीरिया इन मेकिंग मेडिसिन्स, दैट इज एंटीबायोटिक्स. Antibiotics are medicine which kill or stop the growth of disease causing microorganisms. बच्चे, don't get confused with antibiotics and antibodies. Antibodies are produced in response to any foreign material and antibiotics refers to the medicines. A number of antibiotics are being produced by bacteria and fungi. Example is streptomycin, tetracycline. Antibiotics are mixed with feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. Antibiotics are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. क्योंकि कोल्ड और फ्लू क्या होता है, ये वायरस के द्वारा कोज होता है, तो इस केस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स काम करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस में. सो ये था यूजफुल बैक्टीरिया के यूजेस के बारे में कि ये एज अ फ्रेंड कैसे वर्क करता है. इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया जो कि हार्म करते हैं हमें, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और वो क्या क्या हार्म करते हैं हमें. सो इस समय के लिए आपने यही याद करना है, इसके बारे में आपने अच्छी तरह से बुक से गो थ्रू हो जाना है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. थैंक यू सो मच.